A very warm and hearty welcome to all of you present here today. It is a moment of great pride and joy for all of us to gather here to felicitate and honor our respected guest, Professor Wasim Ali Sir, Department of Law. It is a matter of great honor for us to have Mr. Wasim Ali Sir. Sir has been an integral part of the law faculty, shaping the minds of countless students with his deep understanding of legal principles and his passion for justice. His guidance has not only strengthened the academic foundation of his students, but has also inspired them to pursue law with integrity and purpose. I now invite Engineer Asif Sir to come forward and present a bouquet to Mr. Wasim Ali Sir. Thank you, sir. I now request Shagil Sir to come forward and present a bouquet to Professor Wasim Ali Sir. Now, I invite Kazim Sir to present a memento to Mr. Wasim Sir. I now request Riyaz Sir to come forward and honor Mr. Wasim Sir with a shawl. Following this, now I invite Nadeem Sir to present a dessert to Mr. Wasim Sir as a sweet token of our affection. Sir, आ रहे हैं Nadeem Sir. ठीक है. On behalf of everyone present here, I once again extend our heartfelt gratitude to Professor Wasim Sir. And now I would like to invite Wasim Ali Sir to please enlighten us with your golden words. Our team of the guides, our teachers, our mentors, and our future of faculty of law, maybe Aligarh Muslim University, Aligarh, or maybe Jamia Millia Islamia, or any other university. I feel privileged to stand before you to share my views, experience from guidance point of view, because I have come to know that some of you have qualified written tests conducted by Jamia Media, and they are also going to convene or conduct interview or interaction for the final selection to the BLLB course means from the session that is likely to start from July. So how many of you have qualified this test of Jamia Millia? You also. 16 out of 20. So your interview scheduled from 9 July. from 9th July. Yes. Yes. That is going to start from 9th July. And I have witnessed how the interview or interaction is being conducted. So, first of all, I would like to greet and congratulate all of you for qualifying this prestigious test, because so far as the Jamia Millia is concerned, now Jamia Millia is one of the best law school, and a reputation of the Jamia Millia is day by day, session by session is increasing, and now it is among the top 10 universities of the India according to the ranking conducted by the various agencies, academic agencies. Therefore, all of you deserve for appreciation, as well as I also congratulate
your mentors, your teachers who have prepared you to appear in the examination. As a result, you have qualified this prestigious test conducted by the Jamia Millia. From interaction point of view, because that may not be called as interview, but simply they give it a nomenclature of interaction, that for interaction purpose we call the students, and it is of 20 marks perhaps. Maybe 80 for test and 20 for interaction, or 25 maybe. One common question is asked and maybe asked from any one of you as to why are you interested in pursuing BLLB course, whereas so many other professional courses are available, because after passing out 10 plus 2 from science stream, you can go in so many professional courses, maybe diploma engineering, maybe medical, and maybe some other paramedical course, nursing course, and there are so many other professional courses open and available for you as a career option. Then the point arises as to why are you interested in legal profession or BLLB course. This may be a common question, because a legal question may not be asked because you are not law graduate, because you are going to get the admission in BLLB. Therefore, common interest question may be asked. So this may be the general and common question from each and every candidate, particularly for female students. They will be exposed to this question as to why are you interested in this course, or in this. So what may be the possible answer of this? Have you prepared the answer of this question? Because some of the question you have to frame, and you have to be mentally ready to answer in case it is asked. So this is one question. Second question may be that after doing the BLLB, in case you are selected and you are awarded the degree of the PhD, then what will be your next goal? What will be your next aim or option in the life? Either you would like to go in professional life, that is advocacy, or would you like to go in, because they will ask what will be the uh, option open to you after LLB. So you have to point out that I can go here, I can go there, I can do this, I can do this. So I'll at least uh, beer information, you must be well informed about the beer information, what may be options open to you after completing your BLLB. In case you are selected, you complete your BLLB, then what option will be available with you? Only uh, profession, advocacy, or some other options will be there with you, before you. So all these things must be. Second thing is some basic question uh, related to the law field may be asked. Just say, for example, what is the strength of the Supreme Court judges? What is the total number of the judges are to be appointed for the Supreme Court? This is what is the maximum, what is the age of retirement of the judges? Under which article of the Constitution? Because these are the common questions. किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और कौन अपॉइंट करता है? ये सब चीज़ें बेसिकली जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अभी कुछ चीज़ें रिसेंटली दे वर इन द न्यूज़पेपर, और जैसे शेड्यूल 10th के बारे में आप देख लीजिएगा, थोड़ा-सा ये उसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो इसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो इसके बारे में ये बहुत कॉमन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। जो एक बीएलएलबी में जो लड़का एडमिशन लेने जा रहा है, दे आर सपोज्ड टू नो, बिकॉज़ इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर देन यू विल बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप, हालाँकि इंटरव्यू में, इंटरेक्शन में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका इंटरेक्शन कहाँ से शुरू हो जाएगा। दूसरे ये कि कभी-कभी वो ये नॉर्मली ये पूछते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए।
उसमें यू कैन टेक सम टाइम टू सेटल डाउन बिफोर द बोर्ड, कि आप अपना नाम और कहाँ से आपने स्कूलिंग किया, आपकी डिवीज़न में परसेंटेज क्या रही है और क्या कैसा सारी चीज़ें, थोड़ा रहने वाले आप कहाँ के हैं। और फिर एक सवाल ये कहते हैं कि अगर इन केस आपको जामिया मिल जाता है तो आप यहाँ पर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि जामिया में हॉस्टल नहीं है, बहुत लिमिटेड है और सिर्फ वो 2000 की कैपेसिटी है और उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, तो ये भी एक वहाँ पर सवाल पूछते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप तैयार करके रखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नेवर हेजिटेट। आप ये मान के जाइएगा कि आप सारे सवाल जानते हैं और सारे सवाल का आंसर आप देंगे और आंसर को देने में जल्दबाजी मत करिएगा। कभी-कभी ऐसा होता है मुँह से, बोर्ड के मुँह से एक वर्ड निकला और आपने बगैर पूरे क्वेश्चन को समझे हुए जंप किया एंड यू स्टार्ट गिविंग द आंसर, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा फैटल होती हैं। Carefully listen the question, listen full question, whosoever is asking, maybe the chairman of the board, maybe any other member, because वहाँ 3 लोग बैठते हैं, डीन होता है और एक नेक्स्ट डीन होते हैं और एक वीसी नॉमिनी होता है। वो किसी को भी किसी को बुला सकते हैं और उसमें कोई बात नहीं है। तो ज़्यादातर चेयरमैन ही क्वेश्चन करता है। तो बस एक सवाल का मैं आपको जवाब बता करके फिर बाकी चीज़ें और होंगी क्योंकि टाइम की बात है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन बीएलएलबी। ये एक सवाल आपसे जो सिलेक्टेड हैं जो जाएंगे उनसे पूछा जाएगा। आप इसका जवाब दीजिएगा कि देखिए सर, सर करके बात करिएगा, सर या मैडम जो भी हो, तो अगर सर हैं तो सर करके, मैडम हो वैसे सर ही होंगे ज़्यादातर, मैं जहाँ तक, क्योंकि जो डीन और नेक्स्ट डीन दोनों मेल ही हैं। अब जो बीसी नामनी वो मे बी मैडम या मे बी मेल, हूएवर इज देयर। तो कभी जल्दबाजी, इसीलिए मैंने कहा ना जल्दबाजी ना करें, वरना जल्दबाजी में सर को मैडम और मैडम को सर, तो वहीं से थोड़ा सा वो मामला बिगड़ने लगता है। तो इसको देखिए, ध्यान रखिएगा। इस सवाल का बस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन बीएलएलबी, और व्हाई आर यू गोइंग टू परसू बीएलएलबी कोर्स। क्योंकि सवाल ये एक आता है कि ये जो बीएलएलबी का कोर्स है इसमें ऊपर सबसे लेंदीएस्ट कोर्स है। 5 साल का अब कोई कोर्स नहीं रह गया है। सारे कोर्स 4 साल के हो गए हैं, यहाँ तक कि एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है और भी दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, सब 3 से 4 साल के बीच में। सिर्फ बीएलएलबी एक ऐसा कोर्स है जो 5 साल का कोर्स है, तो एक लंबा कोर्स है। लेकिन फिर भी फीमेल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, लड़कियाँ ज़्यादा। आप जामिया में देखोगे तो यू विल फाइंड 60% स्टूडेंट्स इन बीएलएलबी दे आर फीमेल। और सेम पोजीशन हमारे अलीगढ़ में भी तकरीबन तकरीबन 50-50 का रेशियो है। तो लड़कियां इस प्रोफेशन में इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। जबकि जब हम लोग अभी थे तो 150 का बैच होता था जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां थी। हमारे हमारे बैच में मेरे ख्याल से 180 थे। 180 के में सिर्फ 3 लड़कियां थी एलएलबी में। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको अलीगढ़ में भी हो या जामिया में, तो आप देखेंगे कि तकरीबन 50-50 का मामला, और बल्कि जामिया में तो 60-40 का होगा मेरे ख्याल से रेशियो। तो उसका जवाब ये रखिएगा आप ब्रीफ में कि सर, हर स्टूडेंट का एक अपना कैरियर प्लान होता है और कैरियर प्लान में प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंस। हमने भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की हैसियत से मैंने भी अपना एक करियर प्लान बनाया और मेरे करियर प्लान में मेरी फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी। मे बी मेडिकल, मे बी इंजीनियरिंग, मे बी डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मे बी एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स। या आप ये कह सकते हैं कि मेरी प्रायोरिटी और मेरी प्रेफरेंस में मैं शुरू से फ्रॉम द डे वन, जैसे मैंने 10+2 किया था, मैंने डिसाइड किया था कि आई विल गो इन द बीएलएलबी कोर्स। तो ये हमारी, और सेकंड ये था कि in case I could not qualify for 1%, whereas I was 100% sure that I will qualify this test and I will get through finally. But even as a contingency plan, मेरा second प्रायोरिटी या प्रेफरेंस ये था। कोई भी आप बता सकते हैं कि मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या और किसी डिजाइनिंग में या किसी और कोर्स में जाना चाहते हैं। तो अगर हमारा इसमें ना हुआ तो साइड बाय साइड मैंने ये भी टेस्ट दे रखा है।
तो अगर ये मेरा नहीं हुआ, अगर वहाँ हो जाता देन आई विल लुक इनटू, बट मेरी फर्स्ट चॉइस बीएलएलबी है। तो मैं इस कोर्स में एज ए स्टूडेंट मैंने अपना करियर का इसको पार्ट बनाया है, और करियर पार्ट होने की वजह इस पे मैंने पूरा फोकस किया, और उसका रिजल्ट ये है कि मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया, और होप आई होप कि मैं फाइनली भी इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगी। और इसके बाद में जब मेरा बीएलएलबी क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर भी हमारा अपना एक करियर प्लान मैं अभी से बना के चलूँगी। उसमें ये है कि एक होता है जुडिशियल सर्विसेज, एकेडमिक है और एडवोकेसी है। ये 3 हैं कि हमारा फर्स्ट चॉइस रहेगा कि टू गो इन द जुडिशरी, या जुडिशियल सर्विसेज में, या एग्जीक्यूटिव, या सिविल सर्विसेज। सेकंड में साइड बाय साइड माय सेकंड प्रेफरेंस इज दैट इन केस I could not get through in civil services or PCS services, judicial services, then second option will be that side by side I will pursue the LLM after BLLB, and academic is also a good career because there is a lot of the scope for the legal education. Almost in all the universities, law faculty has been established. Not only अब बल्कि कोशिश ये चल रही कि हर कोर्स में लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में आईआईटीज़ में सब हर जगह 1 लॉ का टीचर, आपके यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 लॉ का टीचर है जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट एनवायरमेंटल लॉ पढ़ाता है। तो एकेडमिक में भी हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप है। साथ में आप अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हों तो ये कह लें कि सर एडवोकेसी भी जो प्रोफ़ेशन है, इस प्रोफ़ेशन में भी स्काई इज़ द लिमिट, और हम उसमें भी जाकर के बहुत अच्छा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज़ आई हैव द पोटेंशियल। तो इस वजह से हम जो है वो बीएलएलबी में एडमिशन लेकर के बीएलएलबी को मैं अपने करियर का पार्ट बना, इतना आप बोल देंगे बहुत हो जाएगा, मैं समझता हूँ बहुत हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ है? अ, तो आपको मालूम है सिर्फ एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट है, वो दिल्ली है। ये नहीं जो और स्टेट में है वो सब हाई कोर्ट्स हैं, दे आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट है। इसके बाद में कोई अपील नहीं होती। कभी-कभी पूछ सकते हैं कि कोई अपील है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है। उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होती, मर्सी होती है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ फाइल होती है, की जाती है, वो अपील नहीं होती। अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट देयर इज नो अपील। लोअर कोर्ट हायरार्की ऑफ द कोर्ट कभी-कभी पूछ सकते हैं, तो हायरार्की ऑफ द कोर्ट में ब्रीफली आप बताएं कि साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट में हायरार्की होती है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के बाद में एक ही अपीलेट कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। वो उसकी सीट यानी वो जो है वो दिल्ली के अंदर है, और उसमें इस वक्त पर आ, जो जजेज की स्ट्रेंथ है वो 33 कर दिया है शायद। पहले 30 थी, अब शायद 3 बढ़ा दिया, 33 कर दिया। अभी रिसेंट अमेंडमेंट हाँ, देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, मैं भी अखबार में पढ़ रहा था। तो ये अच्छी चीज़ें ब्रीफ, जो लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ये सब चीज़ों पे फोकस करिएगा। और ये लॉ का कोर्स इस वक्त पर बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स हो गया, और मैं बस ब्रीफ में एक बात बताना चाहता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब इस वक्त पर हर फैमिली को एक एडवोकेट की ज़रूरत महसूस हो रही है। आप खुद रियलाइज़ करेंगे, यू आर इन द मे बी द पार्ट ऑफ द फैमिली, और जितनी प्रॉस्परस, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, उनको उसकी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। आज इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसकी ज़रूरत है फैमिली को या नहीं है, लेकिन हर फैमिली को, हर सोसाइटी को एक अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत महसूस, यानी एडवोकेट और अच्छे एडवोकेट। उसकी वजह ये है कि आपकी फैमिली में अगर कोई डॉक्टर है, कितना बड़ा डॉक्टर है, अगर कोर्ट से, थाने से एक सम्मन आ जाए तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन साथ में अगर आपकी फैमिली में एक भी कोई एडवोकेट है, चाहे वो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं से भी कोई नोटिस, कोई सम्मन, कोई वारंट, कुछ भी चीज़ आ जाए, तो एटलीस्ट फैमिली जो है वो अंडर प्रेशर नहीं होगी। वो कहेगा हम देख लेंगे सब। मैं मतलब एक मोटी सी बात बता रहा हूँ। तो दिस इज़ द प्रोफेशन व्हिच जनरेट्स कॉन्फिडेंस
and raises the level of the confidence in the individual, in the family, in the society. किसी भी स्टेज पे अगर आप देखें जो एडवोकेट है वो कभी उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। मैंने कहा कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, उसके यहाँ एक सम्मन अगर पहुंच जाए तो फौरन डिस्पेंसरी छोड़ के चला जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको किसी भी चीज से डर नहीं रहेगा, यानी आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई रहेगा। किसी भी चीज से आपको आप घबराएंगे नहीं, और ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी बड़ी सख्त जरूरत। तो इसलिए वो खास तौर से लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया। उसकी वजह ये है कि आपके तमाम जो राइट्स हैं, आप सिर्फ अपने राइट्स के बारे में भी और आप अपने लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके ज़रिए से आप जो जो मार्जिनल लोग हैं, जो हाशिए पे लोग खड़े हुए हैं, उनको बहुत सख्त ज़रूरत है अच्छे लॉयर्स की। अगर आप देखेंगे, आप अगर जेल में जाएंगे, लोग दसियों साल से बगैर बेल के पड़े हुए, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कुछ गरीब हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ हैं। तो अगर आप एक समाज सेवा भी करना चाहें तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा आपके लिए प्लेटफॉर्म होगा। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। जितना आप मेहनत कर लेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे हर फील्ड, पैसे के एतबार से, रेपुटेशन के एतबार से, कनेक्शन के एतबार से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, किसी भी मतलब आप समझ लो कि एक मल्टी डायमेंशन प्रोफेशन है। तो अगर आपने इसको चूज किया है तो मैं समझता हूँ इट बी ए गुड डिसीजन, और आगे चल करके आप इसका फायदा देखें। बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है। अ, अगर आप इसको देखें तो हर एतबार से ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट है। Thank you so much, Wasim Ali sir, for those truly inspiring and thought provoking words. Your speech has given all of us so much to reflect upon, and it's clearly why your students hold you in such high regard. On behalf of everyone present here today, I would like to express our heartfelt gratitude to you for taking out the time from your busy schedule to be with us and share your valuable insights. Once again, sir, thank you for gracing us on this occasion with your presence and for wonderful words of encouragement. Now we move on to honor our other esteemed guest. I invite Kazim sir once again to present a memento to Atif sir. And finally, I request Shagil sir to present a memento to Qayyum sir.